सकता है आपके साथ, जो सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद आपको रिकॉग्नाइज करना है इसके कुछ सफिक्स जैसे कि TION, MENT, ITY, IS। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। वन मोर थिंग है, उसके अंदर आपको ग्रामर का पैकेज फ्री देने वाला हूं। Hello and welcome back every student on our channel, that is Ayush PT Elixir. In the last video what I have shared, it's about the nouns and what is the formula for a sentence, that is SVO, and what are verbs। नाई चुराता है जो मैंने बताया था। आज की इस वीडियो के अंदर I'm gonna share with you guys कि कैसे और how to find a noun, what exactly is an adjective, and how to find an adverb in any sentence, so that you can do your reading plans, reading writing plans, and listening fill in the blanks, as well as your write from dictations। So kindly stay tuned and please इस वीडियो को लास्ट तक देखना, watch this video till end because you're going to get a huge surprise in this, and of course that will be beneficial to you। So kindly watch this video till the end and learn something। So did you get this? Like it's SVO, noun, verb and noun means किसी भी sentence के अंदर what you have to do is first of all you have to find a subject, then the verb। means verb की पहचान मैंने आपको last time बताई थी। How to find a verb that is with नाई चुराता है, which first form ends with na for Indian students, and AE in the second form, third form goes with चुका, चुके, चुकी, and fourth with रहा, रहे, रही। Last but not least it's ता है, ती है, ते है, ताहू, तेहू। So it's kind of Hindi recognition that you are going to get, but if I'm talking about the English recognition, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि first form always मिलती है to के बाद या modals के बाद, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। Second form आपको ed और ded without helping verb, third form आपको मिलती है या तो be की forms के बाद या फिर has, have, had की forms जो होती हैं, I mean h होती हैं। Then उसके बाद fourth form with ing, it always followed by you can say एक तो helping verbs जो होती हैं be की, be, was, were, been, being is MR, and last but not least some of the prepositions जैसे कि for, of, in, since, whether, further। There are lots of words that I've told you in the last video, right? So आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ that is something related to your parts of a speech, कि एक जो speech होती है, जो एक sentence बोलते हैं, उसमें क्या क्या parts होते हैं। देखिए राम plays cricket, राम eats fruit, केवल ये sentences आपको नहीं मिलने वाले। Like you're going to get a lot of sentences apart from that जो prepositions से, conjunctions से, punctuations से जुड़ जाते हैं। तो उनको कैसे recognize करना है, बीच में कैसे पता लगने वाला है आपको कि यहाँ पर noun आएगा या verb आएगा या adjective आएगा। तो kindly इस चीज को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक बार बताता हूँ यहाँ पर कि SVO जब आप फाइंड कर लें, उसके बाद आपको जो चीजें फाइंड करनी है that are the parts of a speech। It means nouns, verb, adjective, adverbs, preposition and conjunctions। So these are the most important part of a speech जो आपको पता ही होने चाहिए। मतलब अगर आप noun नहीं ढूंढ पा रहे हैं, adjectives नहीं ढूंढ पा रहे हैं, it means you are not doing it in a correct way, right? आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से आपके डिक्टेशंस के या रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स के जो स्कोर है वो कम आएंगे और उसकी वजह से दूसरे मॉड्यूल्स पर भी इम्पैक्ट जाता है। तो मेक श्योर कि आपको अगर राइटिंग में अच्छा स्कोर चाहिए तो उसके लिए ग्रामर के ये पार्ट्स ऑफ अ स्पीच पता होने बहुत जरूरी है। सो नाउन की अगर बात करें, यहाँ पर ध्यान रखना है कि नाउन को फाइंड करने के लिए सबसे पहली ट्रिक, इट्स गुड एंड बैड। हमेशा किसी भी वर्ड के आगे, नाउन के आगे, आई मीन टू से लाइक गुड और बैड लगा के देखिए। सो इफ यू गेट एनी सेंस देन इट मींस लाइक इट्स अ नाउन। जैसे कि यू कैन से गुड ब्यूटी और गुड ब्यूटीफुल, आप खुद समझदार हैं, व्हाट वी विल पुट दैट, राइट? सो गुड ब्यूटी शुड बी देयर, वेरी ब्यूटीफुल हो सकता है बट गुड ब्यूटीफुल नहीं होता, राइट? तो गुड ब्यूटी इज अ नाउन। लाइक गुड क्यूरियोसिटी और क्यूरियस दोनों में फर्क है। क्यूरियोसिटी में गुड लगाएंगे या क्यूरियस में गुड लगाएंगे। देखिए वेरी क्यूरियस हो सकता है बट वेरी क्यूरियोसिटी नहीं हो सकता। सो गुड क्यूरियस हो सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना है इसी चीज का कि गुड और बैड की सेंस आनी चाहिए। जैसे कोई भी नेम हो सकता है आपके साथ, जो सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद आपको रिकॉग्नाइज करना है इसके कुछ सफिक्स जैसे कि TION, MENT, ITY, ISM, OUR, ENCE, OR, ANCE और IST और you can say NES, hood। So these are some of the suffixes that basically एक noun के अंदर आपको मिलते हैं, right? किसी भी वर्ड के लास्ट में शन, मेंट, ITY, ISM, OUR, जैसे आप एग्जांपल लें नेशन, पॉपुलेशन, राइट? पॉल्यूशन, मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट, क्वांटिटी, क्वालिटी, ऑटिज्म, मैकेनिज्म, लेबर, समथिंग लाइक ENCE से इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से लास्ट में किसी वर्ड के अगर आपको
ये सफिक्स नजर आ रहे हैं तो इट मींस दे आर मोस्ट प्रोबेबली अ नाउन, राइट। अब फायदा क्या होगा नाउन को ढूंढने का, क्योंकि नाउन ही आपको रिटन लेक्चर के अंदर फायदा देते हैं, नाउन्स ही आप रिटन टेक्स्ट में उतारते हैं, नाउन्स ही आप स्पोकन टेक्स्ट के अंदर यूज करते हैं, और नाउन्स का ही खेल है। प्रेपोजिशन, यू कैन से हेल्पिंग वर्ब्स और एडवर्ब्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती जितने कि आपके नाउन्स या एडजेक्टिव्स या फिर वर्ब्स होती हैं, राइट। तो वर्ब्स मैंने बता दी हैं आपको, नाउन्स का आपको एक चीज पता लग गई है। उसके बाद ध्यान रखना है इसकी पोजीशन। देखिए रिकॉग्निशन और पोजीशन दोनों में फर्क होता है, राइट। जैसे कि एक एसी है जो विंडो एसी है, आप उसको पहले तो ये पहचाने कि वो एसी है, वो पंखा नहीं है, तो वो रिकॉग्निशन होती है। पोजीशन के अनुसार मतलब वो खिड़की पर लगा है या दीवार पर लगा है, अगर खिड़की पर लगा है तो उसको स्प्लिट एसी नहीं कह सकते, विंडो एसी बोला जाएगा। तो यही चीज नाउन्स के अंदर होती है कि आपको पोजीशन तो देख लिया उसकी, सॉरी रिकॉग्निशन, अब आपको पोजीशन जाननी है कि कहां कहां पर नाउन मिलता है। सबसे पहले ध्यान रखना है सब्जेक्ट के प्लेस पे। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, तो राम इज अ सब्जेक्ट एंड इट इज अ नाउन। उसके बाद आपको ये मिलता है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, जैसे कि क्रिकेट, राइट। उसके बाद जो आपको ये चीज मिलने वाली है, जो बीच में मिलेगी, दैट्स इट। हमेशा ध्यान रखना है बीच में आपको प्रेपोजिशन से जुड़ता हुआ मिलेगा एक नाउन। मैं आगे इसके लिए एक और वीडियो बनाने वाला हूं ट्रिक से रिलेटेड। सो अभी के लिए जानते चलेंगे कि जैसे एग्जांपल है ब्रदर ऑफ राम इज प्लेइंग क्रिकेट। सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया, अब आप खुद समझदार हैं, सोचिए कि आपके लिए 10 सेकंड है कि ब्रदर ऑफ राम इज प्लेइंग क्रिकेट में सब्जेक्ट कौन है। यस, सो हाउ मेनी ऑफ यू सेड राम? काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज टाइप करिएगा जिसने राम बोला है, क्योंकि आप लोग गलत है यहाँ पर ब्रदर सब्जेक्ट होगा, राम नहीं हो सकता, क्योंकि राम का भाई क्रिकेट खेल रहा है, ना कि राम। तो ध्यान रखना है कि ब्रदर इज अ सब्जेक्ट ओवर हियर ऑफ प्रेपोजिशन, राम is a noun, it's not a subject, but brother is a subject as well as it is a noun। मतलब याद रखना कि every subject is a noun but every noun cannot be subject। हर noun subject हो वो जरूरी नहीं है, but हर subject आपका noun होता ही होता है, उसके ही प्लेस पर pronouns आते हैं, राइट। तो ब्रदर नाउन है आपका, सब्जेक्ट भी है ऑफ प्रेपोजिशन, राम इट इज अ नाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग इज द वर्ब्स फोर्थ फॉर्म, जेरेंट की फॉर्म है। आपके टीचर्स जो आप लोगों को 3 फॉर्म्स बताते हैं, अगर आपको 5 फॉर्म्स जाननी है तो पिछली वीडियो को एक बार जाकर देखिए, उसमें मैंने 5 फॉर्म्स की ट्रिक्स भी दी हैं एंड आई हैव टोल्ड यू गाइस कि कैसे आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट, सो इट इज अ नाउन एज वेल। अब आप यहाँ पर ट्रिक लगाकर देखिए गुड और बैड, गुड ब्रदर बैड ब्रदर, गुड राम बैड राम, गुड क्रिकेट बैड क्रिकेट, बट गुड प्लेइंग बैड प्लेइंग नहीं हो सकता यहाँ पर, राइट। नेम है ब्रदर राम और क्रिकेट, तीनों नाम है। शन मैन टाइटीवाई में से अभी यहाँ पर कोई नहीं आया है, बट ये रिकॉग्नाइज करना है। आपके पास काफी सारे तरीके हैं नाउन्स को पहचानने के, राइट। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस कि आपको नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एटलीस्ट इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। आज की क्लास के अंदर जस्ट मैं आपको नाउन्स का ही बताने वाला था, और नाउन्स के लिए आपने इन ट्रिक्स को याद रखना है। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं, देखिए आपके पास नंबर भी है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाइए, क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप जो ज्वाइन कीजिए ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम पर जुड़िए हमारे साथ। एंड ऑल्सो अगेन लाइक डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, राइट। और वन मोर थिंग, किसी को अगर पर्सनल डेमो क्लासेस या लाइव क्लासेस या फिजिकल क्लासेस चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस, किसी भी तरह की क्लासेस अवेलेबल है, लाइक यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी, यू कैन गेट योर डिजायर्ड कोर्स विद इन 15 डेज और मैक्सिमम 1 मंथ, राइट। 1 महीने से ऊपर आपकी पीटी में नहीं लगता। और आपके लिए जो भी, चलिए सरप्राइज जो मैं देने वाला था वो ये है कि जो हम पीटी का लगभग 6000 पर मंथ ले रहे हैं, अभी के लिए ऑफर है लाइक नेक्स्ट मंथ तक, इस 31 मार्च तक ये ऑफर आप सबके लिए है कि अगले 2 महीने की फीस आपकी 6000 होगी। मींस यू विल हैव टू पे ओनली 6000 रुपीस फॉर 2 मंथ्स, राइट। सो ओवर हियर यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। वन मोर थिंग, मैं उसके अंदर आपको ग्रामर का पैकेज फ्री देने वाला हूं, जो हम ग्रामर के अलग से 2000 रुपीस लेते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए वो कंप्लीट 6000 का पैकेज 2 मंथ्स के लिए होगा। मींस वैसे तो आपका 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, बट इन केस अगर आपको समय लगता है तो यू कैन टेक अनदर मंथ एंड टेक द क्लासेस एज वेल, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। सो एंड में जाते जाते मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि काइंडली प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए उनके साथ जिनको जरूरत है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू अगेन प्रेस द बेल आइकन एंड द सब्सक्राइब बटन। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। हैव अ गुड डे गाइस।